The top story is from Parliament today. Well, after the opposition upping the ante against the centre sat on a dharna, Home Minister Amit Shah inside the House tore into the India alliance. Breathing fire, the government said it is ready for a debate, but the opposition is finding all possible ways to disrupt Parliament proceedings. He's urged the opposition to let the debate take place, as the citizens of the country deserve to know the truth on Manipur. The opposition has been constantly demanding Prime Minister Modi's statement in both houses of Parliament. The monsoon session began with ruckus as the opposition demanded the Prime Minister's reply on Manipur violence. Not just that, the opposition wanted a debate allowing all parties to in fact also make a statement without any time restriction. Before the session began, the opposition formed a united front against the BJP and then staged a massive protest today at the Gandhi statue in the Parliament complex. The BJP staged a counter-protest against the opposition for being silent on atrocities that have happened in opposition-ruled states like Bengal and Rajasthan. मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया है? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 1 से 40 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे। पीड़ा व्यक्त करने का ये एकदम नेचुरल है। सारे देश पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जब हम चर्चा के लिए तैयार है, हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं चर्चा करो और चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकालने का कोशिश करेंगे। ये तो हम बार बार मांग रहे हैं। मैं और सारे देश आज भी और सरकार भी हम समझ ये नहीं पा रहे हैं कि वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। हम सिर्फ राजस्थान को लेके नहीं खड़े हैं, हम मणिपुर के गुनहगारों को भी सजा हो, राजस्थान के भी गुनहगारों को सजा हो, पश्चिम बंगाल के भी गुनहगारों को सजा हो, छत्तीसगढ़ झारखंड के भी बेटियों के बलात्कारियों को सजा हो। ये कह रहे नहीं, राजस्थान में जो बलात्कार कर रहे हैं वो मर्द हैं और ये सारे लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। We are demanding, all the opposition India parties are demanding for Prime Minister's reply. You see BJP MPs, 8 MPs are standing there to just create a problem there. This is not the right way. Where are the 400 MPs party, 300 MPs party, BJP, having 8 MPs to have a symbolic these things and others? The real protest, people's anger is there. India parties are united against this violence in Manipur. Prime Minister should come to Parliament and answer. I think the issue can be easily resolved by the Prime Minister appearing in the House of which he is a member and to which he is accountable. What he said to the press he can say here, and then the debate can start, and the Home Minister presumably be the person who at that point can attend the rest of the debate. But for the Prime Minister to refuse to come at all, he was elected to this House. He should come. एक व्यवस्थित तरीके से देश के सामने जो भी ऐसे विषय है उस पर सदन चर्चा करे, लेकिन विपक्ष इससे भाग रही है और सदन को बाधित कर रही है। अभी मालदा में सरे बाजार में एक महिला को, जवान महिला को निर्वस्त्र करके जिस तरह से पीटा गया, उसका वीडियो वायरल हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है। उसके बाद कूच बिहार में एक 15 साल की लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ, उसकी बड़ी बुरी हालत है और वो हॉस्पिटल में है। महिला मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ पर, उनको दर्द नहीं है, नाम है ममता, किंतु दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है। ये जो एक प्रयास चल रहा है कि मणिपुर से अटेंशन डाइवर्ट करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बंगाल पे वो अटेंशन डाइवर्ट करके ले जाए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि बंगाल में 3 महीना से इंटरनेट चल रही है। बंगाल में स्थिति स्वाभाविक है,
आपको अगर लगता है कि बंगाल में स्थिति खराब है और मणिपुर में बेहतर है, अब मणिपुर में इंटरनेट चलवा दो। देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए।